am Lakshmi. Today we are going to revise lesson 2. Do you know what is the name of lesson 2? Yes, we have already read it. Yes, the name of lesson 2 is The Little Bird. By the end of this video, you will be able to understand hard words, make sentences, true, false and question answers. So, first we will learn about hard words. Do you know what is the meaning of hard words? Yes. About words you have already read in the previous video of English grammar in lesson 1, sentences. And words mean a letter or a group of letters that expresses a particular meaning. यानी हम वर्ड किसे कहते हैं? एक ऐसे लेटर या ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को जिसका एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसे हम वर्ड कहते हैं. एंड हार्ड मीन्स, यस, हार्ड मीन्स डिफिकल्ट यानी मुश्किल यानी कि कठिन. तो हार्ड वर्ड्स मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि मुश्किल शब्द. In every chapter you will find some hard words that you have to learn, like day, day means din. sun, sun means suraj. wind, window, window means khidki. clouds, clouds, clouds means badal. shining, shining means chamakna. grass, grass, grass means घास. wet, wet means गीला होना, भीग जाना. sad, sad means उदास. happy, happy means खुश. singing, singing means गाना, गाना. So these are hard words of chapter 2. ये chapter 2 के hard words हैं, तो ये आपको read करने हैं and learn करने हैं. Okay students? So our next topic is make sentences. Do you know what is the meaning of make sentences? Yes. About sentences you have already known in the previous video of English grammar in lesson 2, sentences. So always remember that a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. कि हमेशा एक सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में उसके हम फुल स्टॉप मार्क करते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक? सो मेक मीन्स create something. So make sentences means to create sentences. So make sentences मतलब sentences को create करना, कि हम किस तरह से sentences को बना सकते हैं. So two words are given here. दो words यहाँ पर दिए गए हैं and you have to use these words in your sentences. आपको इन words को अपने sentences में use करना है. So first word is sad. Sad means udas. We have written here Sita is sad. Sita उदास है. अगर हम कहना चाहें कि मेरी बहन उदास है, then हम कह सकते हैं My sister is sad. और यदि आप कहना चाहते हैं कि आपका भाई उदास है, तो आप कह सकते हैं My brother is sad. In the same way, अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड उदास है, तो आप कह सकते हैं कि my friend is sad. So इस तरह से आपको sentences को create करना है and आपको इन्हीं sentences को अपने day to day life में भी use करना है. So our next word is happy. Happy means खुश. We have written here I am happy. यानी मैं खुश हूँ. इसी तरह से अगर आप बताना चाहते हैं कि मेरे पापा खुश हैं, then you can say my father is happy. Same way अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी खुश है, then you
understand. Read means पढ़ना and और understand means समझना. So read and understand means पढ़ो और समझो. So some sentences are given here. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं जो आपको read करने हैं, then understand करने हैं, and after that you have to answer. और उसके बाद आपको इनके answer देने हैं. Okay? So let's start. Write T for true or F for false. यानी true means सच, false means झूठ. तो इन सेंटेंसेस में से आपको लगता है कि जो सेंटेंसेस ट्रू है यानी कि सच है उनके सामने आप लिखेंगे टी, और जो सेंटेंसेस आपको लगता है कि फॉल्स है यानी झूठ है उनके सामने आपको लिखना है एफ. सो सेंटेंस नंबर 1. द ग्रास वॉज वेट. ग्रास मीन्स घास, वेट मीन्स गीला होना. जो ग्रास है वो गीली थी. तो थिंक एंड आंसर बताएंगे आप, बिकॉज यू हैव रेड दिस चैप्टर. आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. यस, दिस इज ट्रू बिकॉज इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी इसलिए जो ग्रास है वो वेट थी. सो वी विल राइट टी इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस. टी मीन्स ट्रू. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द children played outside the house. जो बच्चे हैं, children means बच्चे, played means खेले, outside the house means घर के बाहर. जो बच्चे थे वो घर के बाहर खेले. बताएंगे आप? yes, no, because बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो बच्चे जो हैं वो घर के बाहर नहीं खेले. तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? Yes, this is false. So we will write F in front of this sentence. Now, sentence number 3. A little bird came into the house. Little means small. तो एक small bird came आया into the house, घर के अंदर. एक छोटा बर्ड घर के अंदर आया था. तो ये बात सच है या झूठ? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है और उसमें एक लिटिल बर्ड जो है वो घर के अंदर आया था. सो वी विल राइट टी इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज माही wanted to keep the bird in a box. So Mahi wanted, Mahi चाहती थी to keep the bird, उस बर्ड को रखना in a box, एक बॉक्स में. तो माही उस बर्ड को एक बॉक्स में रखना चाहती थी. Yes, think and answer. आपने ये चैप्टर रीड किया है तो आपको पता होगा. No, माही नहीं रखना चाहती थी. So this is false. So we will write F in front of this sentence. So students, I hope now you are able to understand the difference between true and false. Now come to the exercise B, that is question answer. Question answer means प्रश्न उत्तर. यानी अभी तक आप ये चैप्टर रीड कर चुके हैं. इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एंड यू हैव टू आंसर देम, और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वर द चिल्ड्रन इनसाइड द हाउस. व्हाई, WHY, व्हाई मीन्स क्यों. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, इनसाइड द हाउस मीन्स घर के अंदर. सो व्हाई वर द चिल्ड्रन इनसाइड द हाउस. बच्चे घर के अंदर क्यों थे. द चिल्ड्रन वर इनसाइड द हाउस बिकॉज इट वॉज रेनिंग. बच्चे घर के अंदर थे बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसीलिए जो बच्चे हैं वो घर के अंदर थे. नाउ
माही ने कहा वी कैन नॉट गो आउट टू प्ले, कि हम बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु ओपन्ड द विंडो. अगेन हु मीन्स कौन या किसने, एंड OPEN ओपन मीन्स खोलना. सो ओपन मीन्स खोला एंड विंडो मीन्स खिड़की. हु ओपन्ड द विंडो यानी विंडो को किसने ओपन किया. आंसर इज बीर ओपन्ड द विंडो. बीर ने विंडो को ओपन किया. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द लिटिल बर्ड फ्लाई टू. वेयर मीन्स कहाँ. द लिटिल बर्ड, वो स्मॉल बर्ड कहाँ उड़ गया. वेयर डिड द लिटिल बर्ड फ्लाई टू, वो स्मॉल बर्ड जो था वो कहाँ उड़ गया. सो आंसर इज द लिटिल बर्ड फ्लू टू अ बिग ट्री. जो लिटिल बर्ड था, फ्लू मीन्स उड़ गया. तो जो लिटिल बर्ड था वो एक बड़े पेड़ की तरफ उड़ गया. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 2. So my dear students, today we have learned 4 topics that are hard words, make sentences, true false and question answer. Hard word means difficult words यानी कि मुश्किल शब्द, and make sentences means to create sentences यानी कैसे sentences हम create करते हैं, बनाते हैं, हमने ये सीखा. and true false में आपने जाना कि what is the difference between true and false. True means such and false means truth. And at last we have learned these question answer means prashna uttar. So I hope you understood everything whatever is taught to you, and if you have any query, any doubt, then you can ask to me. In our next video we are going to learn about action words, lesson 3 of English grammar. So thanks for joining us. Bye students.